جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، ایک دن وہ آئے گا۔ He is a well-known social worker, Khatib Ahl Bayt. He is a doctorate in English, professor and head of department in English with Akbar Peerboy College, Mumbai. His topic for today is doing tawassul with Imam Mahdi alayhi salam shirk. May I please welcome Dr. Sayyid Muhammad Abbas Rizvi Shamsi on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd, faqad qala Allahu lakim fil Qur'anil Kareem wa ma tasha'una illa an yasha Allah. سلام جو گلشن اسلام کا ایک پھول ہے، اس کی خوشبو کے ساتھ آپ کی اجازت سے آپ کی سماعت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہمارے علم ہے کہ ہماری آج کی اس گفتگو کا سبجیکٹ موضوع ہے کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے توسل شرک ہے۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے دامن وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں، لیکن جو ریلیونٹ ایبسٹریکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو ایک کی کا کام کریں گے آگے کے دریچوں کو کھولنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ ایسا ایک ہے جسے کہ کسی نے اسے ایک بنایا نہیں، یا کئی چیزوں سے مل کے وہ ایک بنا نہیں، کیونکہ وہ احدیت اور صمدیت کا حامل ہے۔ اس کی توحید ایک مطلق حقیقت، ایبسولوٹ ریئلٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یکتائی سے کبریائی کو ملا دیا جاتا ہے تو اور کبریائی کو یکتائی سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اسی کا نام توحید ہوتا ہے، اور جب کبریائی کو یکتائی سے الگ کر دیا جاتا ہے تو اسی کا نام شرک ہوا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا بلا فصل ہونا، اسی کا نام توحید ہے۔ ایسی توحید کی حامل واجب الوجود غیب الغیوب میں رہتے ہوئے جب ارادہ الہی کے تحت لہجہ الہی میں کنتو کنزن مخفیہ کی گھن گرج کے ساتھ معرفت کے باب کو وا کرتا ہے اور تخلیقی کائنات کی بنیاد رکھتا ہے۔ پھر ہم دنیا کے سینریوں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نور الہی ہے جو ممکن الوجود بن کر پورے جہان تخلیق کو، اپنے خلق کو اپنے احاطے میں لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ملائکہ ان کے پاس موجود ہیں مگر پشت کی طرف ہیں۔ آدم نے اللہ سے کہا، میرے مالک ان سے کہہ دے کہ میرے سامنے آئیں، کیونکہ ہم بشر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو بغیر انسیت کے جی نہیں سکتا، بشر وہ ہوتا ہے جو بغیر خوشی کے رہ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے آدم سے کہا کہ یہ مسجود ملائکہ ہیں، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، آپ خود انہیں حکم صادر کریں، یہ سامنے آ جائیں گے۔ صفی اللہ نے کہا، تم سب میرے سامنے آؤ، پشت کی طرف کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا صفی اللہ میں ہم آ جاتے، مگر کیا کروں، اللہ نے آپ کی پشت میں ایک نور کو رکھا ہے، جدھر جدھر وہ نور رہے گا ادھر ادھر ہم رہیں گے۔ تو آدم نے پھر اللہ سے کہا، میرے مالک جب وہ نور اتنا محترم ہے تو اسے میری پشت میں نہیں بلکہ اس کو میری پیشانی میں ہونا چاہیے۔ وہ نور پشت سے اٹھ کر کے پیشانی میں آ گیا، ملائکہ سامنے آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میرے مالک وہ نور جب اتنا محترم ہے جو پیشانی میں آ گیا تو ساری دنیا ہماری پیشانی میں اس کی زیارت کرے اور ہم خود اس کی تجلیات سے محروم رہ جائیں۔ تو میرے مالک اسے میرے ہاتھ میں بھیج دے تاکہ ہم زیارت کریں بھی اور زیارت کرائیں بھی۔
जैसे ही वो नूर हाथों में उतरा, 5 उंगलियों में मुनक़सिम हो गया, 14 पोरों में बट गया, पंजतन बना, 4 मासूमीन बना। ये एक पूरा सिलसिला है अज़ीज़ों, जो आप देखें और चलता रहा। अब यहाँ तक आने के बाद जो हम जानना चाहते हैं वो क्या है, वो ये है कि इंसान को जब भी कोई चीज़ मिलती है तो उसके 3 ही रास्ते हैं। या तो कोई शख्सियत, कोई अथॉरिटी उसको वो चीज़ डेलीगेट कर दे, जिसे तफवीज़ कहा जाता है, तफवीज़ कर दे। तफवीज़ के में जहाँ ये शरफ़ है कोई चीज़ किसी ने किसी को दे दी, वहीं इसकी कमज़ोरी और वीकनेस है कि वो अथॉरिटी जब चाहे इसे रिवोक भी कर सकती है, इसे वापस ले भी सकती है। दूसरी चीज़ होती जज़ा। अपनी मेहनत की बिना पर या किसी के करम के बिना पर जब इंसान को कुछ मिल जाए तो इसे जज़ा कहते हैं। जज़ा में जहाँ इंसान पाता ही शरफ़ है, वहीं इसकी वीकनेस ये है, कमज़ोरी ये है कि कोई भी इससे छीन के ये चीज़ ले जा सकता है। समझे आप हैं? 100 रुपये एक मजदूर ने कमाया, लेके जा रहा है, रास्ते में कोई रॉबर मिल गया, कोई डकैत मिल गया, उसने छीन लिया उससे, चली गई उसके पास से जज़ा थी। तो पता चला कि तफवीज़ में भी एक कमज़ोरी है और जज़ा में भी एक कमज़ोरी है। तब आगे चल के हमने देखना चाहा तो एक चीज़ हमको और मिली कि जहाँ उस चीज़ को जालिम छीन नहीं सकता, बातिल ले नहीं सकता, यानी वो जज़ा नहीं है, और हक से हक को वापस लेता नहीं, यानी तफवीज़ नहीं है, इसी का नाम होता है अता। तो बस समेट के इतना कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद व आले मोहम्मद को अल्लाह ने जो दिया है ये वो अता है कि जो न जज़ा में आती है न तफवीज़ में आती है। इसके माने जो इनके पास आ गया सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, और बाकी रहना इस बात का सबूत है, ये मालिक का कमाल एतबार है मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात मुक़द्दसा पर। अब जब सब उसने दे दिया तो इन्हें पुकारना क्या शिरक होगा? फिर आप चल के देखें तो आपके सामने बात आया होगी अज़ीज़ों, और पूरी तरह से खुल के आ जाएगी कि आले मोहम्मद का मकाम क्या है, इन्होंने अपने अमल से दुनिया को क्या पैगाम दिया। थोड़ी सी मुसीबत किसी पड़ती है तो भूल जाता है, शिरक बकने लगता है, कुफ्र के कलमात आ जाते हैं। करबला में कोई और होता तो यही कहता इतने मसाइब व आलाम का खुदा नहीं है, मगर सजदे में सर झुका के नहीं, अल्लाह की बारगाह में सर कटा क्या खुदा ही तो है। समझे? क्या खूब कहा है जोश मलियाबादी ने, सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। समझे आप हैं? इसके माने इन्हें पुकारना शिरक नहीं, ऐन तौहीद है अज़ीज़ों। समझे आप? बस अज़ीज़ों, बस ख्याल इस बात का रहे कि प्रोटोकॉल को आप मेंटेन करके चले, या वजीहन इंदल्लाह है वजीहा। समझे आप? बस इतना प्रोटोकॉल मेंटेन रहे कि जो इन्होंने फरमा दिया कि बस ये जानना हमारे उसके बीच क्या फ़र्क है, वो है, हम हैं इस चीज़ों। बस बात को तलखीस करते, फिर क्यों इन्हें पुकारना? देखिए, अल्लाह की ज़ात वह है जो रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान बन के वो अपने फजल को जारी करता है, रहीम बन के वो अपने अदल को जारी है। इसलिए रहमान बन के उसने आखिरी नबी को भेजा ताकि दुनिया फजल इलाही को देखे, रहीम बन के आखिरी इमाम को भेजा है ताकि दुनिया अदल इलाही को देखे। समझे आप? इन बातों को जहन में रखेंगे, इन डेटास को। अब नतीजा क्या है? इसीलिए उसने कहा कि फजल इलाही चाहते हो तो मेरे रसूल का कलमा पढ़ो, अदल इलाही चाहते हो तो मेरी तरफ से आने वाले इमाम का कलमा पढ़ो। रसूल का कलमा यही बना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम का कलमा वही बना मोहम्मदुन बक़ियतुल्लाह। यही वजह है फजल इलाही के तलबगारों की जिम्मेदारी है कि फजल इलाही को रहमान से हासिल करना चाहते हैं तो यही कहें सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह अदरिकना। और अदल इलाही के तलबगारों की जिम्मेदारी है कि अगर अदल इलाही चाहते हैं तो पुकारें सल्लल्लाहु अलैहि बक़ियतुल्लाह अदरिकना। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ों चल के देखेंगे आप तो सारी चीज़ें आपके सामने आया हो जाएगी। तो हर फजल का तालिब, हर अदल का तालिब इन्हीं को तो पुकारेगा बारगाह इलाही से उस चीज़ को हासिल करने के लिए। अब चलें, चूँकि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, बस आखिरी बात कंक्लूजन में आ रहा हूँ कि आप चल के देखिए
पूरी ह्यूमन नेशन को, पूरी इंसानियत को, आलम इंसानियत को, समझे आप, है जहाँ भी चल के देखते हैं कहीं सोशल जस्टिस नहीं है, समाजी अदल नहीं है, कहीं पर कोई इंसान बेचारा है कि माशरे में आप देख लें पूरा यहूदियों का निज़ाम चल रहा है, हर इंसान परेशान चल रहा है, समझे आप, हैं जिसके पास पावर है, इख्तिदार है, पैसा है, कैपिटल है अजीज़ों, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, समझे, इस्तेहसाल कर रहा है अजीज़ों। हर एक को बराबर का हक नहीं, इक्वलिटी को एक ख्वाब बना के दे दिया, इसका जो ताबीर है वो इंटरप्रिटेशन सामने नहीं आ पा रहा है अजीज़ों। आप चल के देखें, तफसील में नहीं जाना, सिर्फ इतना कहना है तो एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक सवालिया निशान उभर के आता है कि कौन है जो इस टॉर्चर ह्यूमैनिटी को कंसोल कर सके और मजलूम को उसका हक दिला सके, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर सके अजीज़ों। मैंने एक प्रोग्राम में मैं भी मौजूद था, मेरे मामू जान मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अबुल कासिम रज़वी साहब ताबसरा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस चीज़ को समझने के लिए उसी तज्ज़िये को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि पूरी ह्यूमन नेशन को अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लासीफाई करें अजीज़ों, समझे आप, उसका क्लासिफिकेशन करें, दर्जाबंदी करें, तो हमारे सामने ये आता है कि 4 हिस्सों में बंटती है। एक आलम इंसानियत का तबका वो है जो कानून पर, लॉ पे भरोसा करता है, और एक आलम इंसानियत का तबका वो है जो तारीख पे, हिस्ट्री पे, इतिहास पे भरोसा करता है। एक आलम इंसानियत का तबका वो है जो फ़लसफ़े पे, फ़िलासफ़ी पे, दर्शन शास्त्र पे भरोसा करता है, और एक आलम इंसानियत का तबका वो है जो इल्म पर, नॉलेज पर, ज्ञान पे भरोसा करता है। जाहिर सी बात है, किसी को उम्मीद है कानून से कोई शख्सियत उठेगी और हमें कंसोल कर देगी, किसी को उम्मीद है कि तारीख से कोई हस्ती उभर के आएगी जो हमें नजात के किनारे पे पहुंचा देगी, किसी को उम्मीद है कि फ़लसफ़े की दुनिया से कोई शख्सियत उभर के आएगी और हमें अमन व अमान का पैगाम सुनाएगी, किसी को उम्मीद है इल्म की दुनिया से कोई हस्ती उभर के आएगी, कोई शख्सियत उभर के आएगी और हमारे बिलकने को एक खुशी में बदल देगी अजीज़ों। मगर यहाँ पे मसला ये हो गया कि अगर कानून की दुनिया से कोई उठ के आता है तो उससे कानून वाले तो मुतमईन हो जाएंगे, तारीख वाले नहीं होंगे। तारीख की दुनिया से कोई उठ के आता है तो उससे तारीख वाले तो मुतमईन हो जाएंगे, मगर फ़लसफ़े वाले नहीं होंगे। फ़लसफ़े की दुनिया से कोई उठ के आता है तो उससे फ़लसफ़े वाले तो मुतमईन हो जाएंगे, मगर इल्म वाले नहीं हो जाएंगे। तो ज़रूरत है, ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है, कोई एक ही हस्ती उठे जिस सब के सब मुतमईन हो जाए, फ़लसफ़े वाले भी मुतमईन हो सके, तारीख वाले भी मुतमईन हो सके, इल्म वाले भी मुतमईन हो सके और कानून वाले भी मुतमईन हो सके। तो जब इन चारों चीज़ों को लेकर, इन चारों क्राइटेरिया को लेकर ऐसी शख्सियत को हमने आलम इंसानियत में फाइंड आउट करना, ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया, तो हमें मिली एक ही हस्ती है जो कानून के एतबार से इंसानों का इमाम है, जो तारीख के एतबार से इस्मत कुबरा के सिलसिले की वो अजीम कड़ी है जो सुबह क़यामत की तरफ से जाके मिल गई, जो फ़लसफ़े के एतबार से वजह बकाए कायनात है, जो इल्म के एतबार से शहर इल्म का वो सिलसिला है कि इस घर का पहला शहर इल्म वो जो मौलूद काबा और आखिरी वो जो मऊद काबा, पहले इमाम के विलादत काबे में, आखिरी इमाम का ज़ुहूर काबे से। जब ऐसी हस्ती उभर के आती है तब दुनिया में जितने भी पूरे ह्यूमन नेशन में, पूरे आलम इंसानियत में जितने भी तबकात मुत्तहिद हो करके वो हिस्सों में नहीं बटते, इंसान बनकर उसे पुकारते हैं और मुतमईन हो जाते हैं। तो आलम इमाम महदी का अकीदा ये शीरों की ईजाद नहीं है, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है, ये इस्लाम का फ़लसफ़ा नहीं, आलम इंसानियत की वो ज़रूरत है कि दुनिया अल अजल या इमाम कहे ताकि जुल्म बर्बरियत से उधर कर सुकून और आश्ती के उसमें आ सके। आप जानते हैं दुनिया का मंजरनामा यह है कि अदालतों में फैसले हो रहे, इंसाफ नहीं। जानते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, दुनिया इंतजार में अदल इंसाफ के, इंसाफ इंतजार में इमाम के। पहचाने आप इसको, इस बारीकी को, इस नज़ाकत को समझें। दुनिया इंतजार में है अदल इंसाफ के और इंसाफ इंतजार में है इमाम के। उधर भी इंतजार, इधर भी इंतजार। अदालतों में फैसले होते मगर इंसाफ नहीं होता।
امام جب آئیں گے تو فیصلوں میں انصاف ہوگا. اس لیے امام کو پکارنا، امام سے استغاثہ کرنا، ان سے توسل کرنا، آپ جانتے ہیں یہ عالم انسانیت کا ایک یونیورسل ریکوائرمنٹ ہے، ایک آفاقی ضرورت ہے. اس لیے ہر انسان دانستہ اور غیر دانستہ، جان کے یا انجان بن کے، اس کے دل کی یہی آواز ہے، الاجل یا امام، الاجل یا امام. جو شرک نہیں عین توحید ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا صاحب تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ. صدق اللہ العلی العظیم.